So students, we are working on this numerical, and by dividing 1 by 2 we have obtained Mb prime divided by Mb. So this is 180 molar mass for glucose, Mb is molar mass for sucrose, which is 342. So delta TF will be delta TF into 342 by 180. By putting these value, we have got the value of delta TF to be equal to 4.085. Now student, TF we have calculated for this first solution, which is TF naught minus TF. So this is 2.15. So we have delta TF as 2.15. On doing the calculation, delta TF we have got it to be equal to 4.085. The student, our target was to calculate the freezing point of solution, this glucose water solution. So since we have obtained delta TF, so TF will be equal to TF naught minus 4.085. So 273.15 minus 4.085 will give us the value of 269.065 Kelvin. This is the answer, students. Now student, the last colligative property to work on is osmotic pressure. The concept of osmosis was put forward by scientists called Eben Nollet in 1748, students. And we have considered two cases here. In the first case, we have taken a solvent and a solution here, and these two segments are separated by semi-permeable membrane. What is semi-permeable membrane, student? A membrane which allows the passage of only the solvent molecules but not the solute molecules. These are called as semi-permeable membranes, जिससे सिर्फ सॉल्वेंट के पास हो सकते मॉलिक्यूल, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है स्टूडेंट. इसमें नेचुरल मेम्ब्रेन चला आता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, प्लांट मेम्ब्रेन. आप देखते होगे प्लांट मेम्ब्रेन आउटर लेयर के जस्ट अंदर में ये प्रेजेंट होता है. पिग ब्लैडर इज अगेन अ नेचुरल मेम्ब्रेन. एनिमल मेम्ब्रेन. आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स भी बनाए जाते हैं स्टूडेंट, सच एज पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, और membrane made by help of copper ferrocyanide. Now student, यहाँ पे SPM लगाई गई है, and the solvent has been separated. Solvent and solution both are separated. Student, let us assume that here we have taken copper sulfate solution. तो भाई इसकी कलर क्या होनी चाहिए? डार्क ब्लू होनी चाहिए. अब आप थोड़ी देर में क्या ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट कि इसकी कलर फेंट हो रही है, इसका मतलब है सॉल्वेंट की फ्लो हो रही है. इसी सॉल्वेंट की फ्लो सॉल्यूशन में, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं स्टूडेंट. The flow of solvent into the solution is called as osmosis. इसी solvent की flow जब solution में होती है स्टूडेंट, तो we call it as osmosis. हम लोग उसको osmosis कहते हैं. तो क्या होगा स्टूडेंट, इसकी लेवल नीचे आएगी और इसका लेवल, सॉल्यूशन का लेवल ऊपर चला जाएगा. तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ये लेवल राइज करेगा, देयर विल बी एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ट अप. ये एक्स्ट्रा प्रेशर है जिस पे क्रिएट हो रहा सॉल्यूशन की साइड से. This extra pressure is called as student hydrostatic pressure here, H rho G. और भाई यही तो है osmotic pressure. यहाँ पे osmotic pressure क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है. अब इस एक्स्ट्रा प्रेशर के क्रिएट होने से the solvent will stop flowing inside the solution. सॉल्वेंट की फ्लो सॉल्यूशन में होना बंद हो जाएगा, मतलब ऑस्मोसिस रुक जाएगा स्टूडेंट. अगर मैं केस को और कंसिडर करूँ, वेयर वी हैव गॉट टू सॉल्यूशन 1 and solution 2 students, and in this case what we are observing is solution 1 is more concentrated. by concentration ज़्यादा तो solute ज़्यादा होगा, solute ज़्यादा है तो solvent कम होगा. and solution 2 के केस में concentration इसके less है. by concentration less है मतलब क्या होगा, solute कम होगा तो solvent ज़्यादा होगा. तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, solvent किसके सेगमेंट, किसके साइड से ज़्यादा है? solvent ज़्यादा स्टूडेंट solution 2 के साइड से. तो solvent की flow solution 2 से solution 1 में होगा. This is called as osmosis. So student, what is osmosis? The flow of solvent into the solution through SPM, or the flow of solvent from a solution of low concentration to a solution of high concentration is called osmosis. फिर यहाँ पे भी ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्डअप हो रहा स्टूडेंट, H rho G, एक्स्ट्रा प्रेशर जो बिल्डअप हो रहा स्टूडेंट यहाँ पे H rho G, दिस इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर, इसी को आप ऑस्मोटिक प्रेशर भी कह सकते हो. नाउ स्टूडेंट, लेट अस वर्क अहेड. आगे हम लोग वर्कआउट करते हैं, एंड लेट अस ट्राई टू नो दीज 3 टॉपिक्स विच आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट, बिफोर गोइंग थ्रू दीज टॉपिक आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जान लो. यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स.
तो इन क्लास 11th यू हैव रेड आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वहाँ पे बॉयल्स लॉ यूज़ में आता है, चार्ल्स लॉ यूज़ में आता है, गेलुसेक्स लॉ यूज़ में आता है। यहाँ पे यूज़ में आता है स्टूडेंट बॉयल्स वेंटॉफ लॉ, चार्ल्स वेंटॉफ लॉ, गेलुसेक्स वेंटॉफ लॉ, और जो एक्सप्रेशन डिराइव होकर आता है स्टूडेंट दिस इज पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव रेड इन आइडियल गैस इक्वेशन स्टूडेंट्स। अब यहाँ से पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई वी आर टी। व्हाट इज एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स, और बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया, मोलर कंसेंट्रेशन मोलैरिटी। सो पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, फार्मूला क्या बना स्टूडेंट, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पॉइंट टू बी नोटेड, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, सी इज मोलर कंसेंट्रेशन, आर क्या स्टूडेंट, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। लेके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, टेम्परेचर इन केल्विन हो गया टी। तो स्टूडेंट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम होती है एंड बोथ सॉल्यूशंस आर ऑब्जर्व्ड एट सेम टेम्परेचर। तो भाई कंसंट्रेशन सेम हो गया और एक ही टेम्परेचर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, आर तो कांस्टेंट है, तो दोनों के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा स्टूडेंट। सो पाई 1 विल बी इक्वल टू पाई 2। सो सॉल्यूशंस जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होती है, दो सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट लेट अस टॉक अबाउट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो व्हाट आर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस विथ लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सॉल्यूशन होते हैं जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम होती है, लो होती है। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर से कंसंट्रेशन क्या डायरेक्टली रिलेटेड, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो लो कंसंट्रेशन हो गया। भाई लो कंसंट्रेशन हो गया, इसका क्या मतलब है कि सॉल्वेंट की अमाउंट क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है यहाँ पे। तो अगर सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है तो क्या होगा, चेक करते, लेट अस प्लेस अ सेल लेयर, एक सेल को प्लेस करते स्टूडेंट, ब्लैक से मैंने इसको दिखाया यहाँ पे उस सेल को। तो सॉल्वेंट की अमाउंट जब सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट क्या होगा स्टूडेंट, फ्लो करना इनसाइड, फ्लो करना स्टार्ट करेगा वो सेल के अंदर, और एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ये सेल स्वेल कर जाएगा। तो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू दिस सेल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। एज अ रिजल्ट दिस सेल स्वेल्स, सेल स्वेल कर जाएगा स्टूडेंट। एंड इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो भाई कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा तो सॉल्वेंट की अमाउंट कम है सॉल्यूशन में, तो सेल की जो सॉल्वेंट कंटेंट है वो बाहर फ्लो करना स्टार्ट करेगा, एक्सोऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा स्टूडेंट। तो इन दोनों ही केस में सेल डैमेज हो रही स्टूडेंट। देखो लेट अस टेक द केस ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शन। तो जो वेन्स में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं डायरेक्टली, वो नॉर्मल सलाइन इंजेक्शन की बात करें तो उसकी कंसंट्रेशन होती है स्टूडेंट 0.9% NaCl सॉल्यूशन मास बाई वॉल्यूम, और ये आइसोटोनिक होती है ह्यूमन ब्लड की, तो सेल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। बट अगर जो सलाइन लगाई जा रही है, मान लो उसकी कंसंट्रेशन मोर देन 0.9% है, भाई कंसंट्रेशन ज़्यादा अगर हो गया तो इट्स अ केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो स्केल में सेल श्रिंक कर जाएगा। अगर जो इंजेक्शन लगाई जा रही है उसकी कंसंट्रेशन लेस है देन 0.9%, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, इट्स अ केस ऑफ अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और सेल स्वेल कर जाएगा। तो दोनों केस में सेल की बर्स्टिंग हो जाएगी, सेल को नुकसान पहुंचेगा। नाउ लेट अस टेक द केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस स्टूडेंट। रिवर्स ऑस्मोसिस ये आप देख सकते हो, ये वी हैव टेकन सलाइन वाटर, इन दिस सेगमेंट वी हैव फ्रेश वाटर सेपरेटेड बाय SPM। तो नॉर्मल केस में वाटर जो है सलाइन वाटर से फ्रेश वाटर जो है स्टूडेंट वो मूव करेगा, सलाइन वाटर की ओर मूव करेगा नॉर्मल केस में। बट जब एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दी गई है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा कर दिया गया है, तब क्या होगा, जो फ्रेश वाटर प्रेजेंट है सलाइन वाटर में वो मूव करना स्टार्ट करेगा इस सेगमेंट में और हमें फ्रेश वाटर मिल जाएगा। तो इसकी एप्लीकेशन क्या स्टूडेंट, डिसैलिनेशन इन वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस हम कैसे करा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर वी कैन कैरी आउट रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें इराक में वाटर की बहुत ही स्कैरसिटी स्टूडेंट, एंड इराक बहुत ही आसानी से वाटर को ऑब्टेन कर रहा, सी वाटर को वो डिसैलाइन कर रहा और वो ड्रिंकेबल वाटर, प्योर वाटर में वो कन्वर्ट कर रहा स्टूडेंट। इसके न्यूमेरिकल स्टूडेंट हम लोग आगे बनाएंगे जब वेंटॉफ फैक्टर को क्लियर करेंगे।